Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today's lecture is also related to the exercise 4.1, but we have to go for the question number 6, that is the last question. In this question, we have to perform the indicated operations and then go for their most reduced, the simplest form. Part 1, x square minus 49. First part, dot means multiplied by 5x plus 2 or denominator x plus 7. Now students, in these questions we have to not go for the LCM. These are simple multiplication and divisions of rational expressions. So look at the first expression. It is a difference of square formula that can be written as x square minus 7 square. First of all, we have to convert this expression in this form. The next rational expression will be written as it is without any change. X plus 7. Now here we have to apply the formula number 3. All these formulas are written before you people. 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to formula number 8. So number 3 will be applied here. So according to the formula number 3, it will be converted into two factors, x plus 7 into x minus 7 multiplied by 5x plus 2 upon x plus 7. Now we have to make cancellation. X plus 7 will be cancelled by this x plus 7, and two factors will be left behind, 5x plus 2. Now we have to go for their multiplication. 5x square plus 2 times x minus 35 times x minus 14. The last and final step that we can say, the answering step है 5x square minus 33x minus 14. This is the most simplest form of this part. Dear students, in the book, this step has been declared as the answer. So you can write this step as the answer, as well as you can write also the step as the answer, please. So the part 1 has been completed. Let's come for part 2. Chapter 4, 5 and 6. These three chapters are purely games of these formulas. One who has concept of these formulas
he can in a position to solve all these questions. Now part 2, 4x minus 12. 4x minus 12 divided by x square minus 9 divided by, there is a symbol of division, 18 minus 2x square x square plus 6x plus 9. Now first of all, we will have to look at the numerators as well as denominators of these two rational expressions. So here we can take 4 as a common factor. So x minus 4 threes are 12. This is the first step. Similarly, in the denominator, there can be an application of difference square formula. X square minus 9 can be written as 3 square. यानी हमने उस फार्मूले का फॉर्मेट पहले बनाना होता है और फिर उसकी एप्लीकेशन को हम यूज करेंगे. Here this division can be converted into multiplication by taking the reciprocal, I mean the multiplicative inverse of this rational expression, x square plus 6x plus 9 divided by 18 minus 2x square. Now the next step will be 4 times x minus 3 in the denominator, x plus 3 and x minus 3 multiplied by, dear students, you see that it is a quadratic polynomial and moreover it is a perfect square of x plus 3 whole square. यानी पहले आपने से फार्मूला नंबर 1 देखें. Look at the right hand side, a square plus b square plus 2ab. आपने पहले से उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. या there can be the concept of middle term breaking that we will discuss in detail in the chapter number 5. Here we will use the concept of the expanded form of the formula number 1, that is a plus b whole square. तो यानी आपके पास ये expanded form है तो आपने इसे फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और वो हम इस तरह से करेंगे. ए स्क्वायर यस प्लस 2 फॉर्मूले का इंटू फर्स्ट टर्म x इंटू सेकेंड टर्म 3 प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर 9 को हमने 3 का स्क्वायर लिख दिया एज ए स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय, यहाँ आप 2 कॉमन कर सकते हैं. सो इट विल बी 9 minus x square. Now this 3 can be cancelled and we have left behind 4 over x plus 3 multiplied by, this is the whole square of x plus 3 यानी a square plus 2ab plus b square. It is basically whole square of a plus b और a को रिप्रेजेंट कर रहा है x और b की जगह आ रहा है 3. तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 3. यानी अब आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 3 का स्क्वायर फॉर्मूट में लिखेंगे फॉर्मेट में और माइनस x का स्क्वायर ताकि फिर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला आ जाए. अब इसके बाद डेफिनेटली आपने ये स्टेप देख लिया है, नोट भी कर लिया है. अब हम इसको अगले स्टेप की तरफ ले जाएंगे. द नेक्स्ट स्टेप विल बी 4
divided by x plus 3 multiplied by x plus 3 whole square can be written as x plus 3 into x plus 3। मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ होल स्क्वायर आता है, हम उस फैक्टर को 2 टाइम्स लिख सकते हैं विदाउट एनी चेंज, और अगर क्यूब हो तो हम उसे 3 टाइम्स लिख सकते हैं। तो ये चूंकि होल स्क्वायर है लिहाजा ये x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 आएगा, और इसके नीचे 2 टाइम्स नाउ a प्लस बी यानी कि 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स यानी a माइनस बी। नाउ you can rearrange 4 over 3 x plus 3 into x plus 3 into x plus 3 divided by 2 into 3 plus x can be written as x plus 3, no change. It is a commutative property. 3 plus x is absolutely equal to x plus 3, but here we cannot write it x minus 3। फिलहाल हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, बाद में अभी देखेंगे लास्ट टर्म में। नाउ मेक कैंसलेशन, 2 1s are 2, 2 2s are 4, x plus 3, x plus 3, this x plus 3, this x plus 3। हमारे पास ये जो 2 बच गया है इन द न्यूमिनेटर, वी हैव ओनली वन टर्म इन द न्यूमिनेटर, इन द डिनोमिनेटर वी हैव 3 माइनस एक्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी कैन राइट दिस इफ यू वांट माइनस डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ये अगर आप चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन करके इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज ये भी आंसर हो सकता है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स कम फॉर द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 3। ऑल दीज पार्ट्स आर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इस एक्सरसाइज में से नहीं आता, वो आगे चलकर लास्ट एक्सरसाइज में से आएगा आपको। ये सारी 4.1 एक्सरसाइज जो है ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट 3 x to the raised power 6 is a big question. Y to the raised power 6 divided by x square minus y square divided by x to the raised power 4 plus x square y square plus y to the raised power 4 divided by, there is no other factor in the denominator. Now students, look at the numerator, that is x to the raised power 6 minus y to the raised power 6। इसके ऊपर हम क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे, और फार्मूला नंबर है जो आपके सामने फार्मूला लिखे हुए हैं, इसमें नंबर 5 को देखें अगर आप गौर से। दिस इज अ नंबर 5, हियर इट इज नंबर 5, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हमने इसको इस फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करना है। सो एक्स स्क्वायर होल क्यूब माइनस वाई स्क्वायर होल क्यूब, ये है वो फॉर्मेट। इसके बाद फार्मूले की एप्लीकेशन आएगी। दिस एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नो चेंज। सिमिलरली दिस विल बी multiplied by 1 over, we have to get its reciprocal, I mean multiplicative inverse, तो ये 1 over x to the raised power 4 plus x square y square plus y to the raised power 4। Now dear students, apply the formula number 5 in the numerator
So in accordance with the application of this formula number 5, it will become a माइनस बी. यहाँ a जो है वो एक्स स्क्वेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है और b खाली जो है वो वाई स्क्वेयर की जगह आएगा. तो a माइनस बी का मतलब ये है कि एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, यानी उस फॉर्मूले में हमें ये गाइडलाइन मिलती है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब. तो a की जगह एक्स स्क्वेयर है और b की जगह वाई स्क्वेयर है. तो इसकी राइट हैंड साइड पे जो पहला फैक्टर बनेगा a माइनस बी, तो उसकी जगह आ जाएगा a एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर. फिर उसके बाद उसके साथ दूसरा फैक्टर जो मल्टीप्लाई हो रहा है a स्क्वेयर, यानी x2 का स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू एक्स स्क्वेयर है तो a स्क्वेयर का मतलब है x2 का स्क्वायर, और प्लस साइन चेंज हो जाएगा ab यानी एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर, ये ab की जगह आ गया, और प्लस b स्क्वेयर यानी y2 का होल स्क्वायर. अब आपका ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया और इसके नीचे हमारे दो फैक्टर्स आ जाएंगे, एक एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, यानी पहला फैक्टर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और ये फैक्टर भी अब आपका डिनोमिनेटर में ही आ जाएगा, यानी कि एक्स टू द रेज पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और प्लस वाई टू द रेज पावर 4. अब आपने इस वाले फैक्टर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है. उसके मुताबिक ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और इसके साथ एक्स टू द रेज पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर वाई टू द रेज पावर 4, और ये फैक्टर एज इट इज एक्स टू द रेज पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस वाई टू द रेज पावर 4. Now we have to go for their cancellation. This will be cancelled. This will be cancelled. These two factors, they are of the same kind. So these two factors will also be cancelled. और हमारे पास आंसर जो है वो 1 आएगा, 0 नहीं आएगा. 1 is the answer for this part. तो यहाँ यानी फॉर्मूला नंबर 5, I mean a क्यूब माइनस बी क्यूब की एप्लीकेशन है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है. बाकी सारे फैक्टर जो है वो आपने उसी तरह लिख रहे हैं. सिर्फ x टू द रेज पावर 6 माइनस वाई टू द रेज पावर 6 के ऊपर हमने फार्मूला अप्लाई किया, और वो किस तरह से लिखा, यानी 3 के टेबल में लाना होता है. क्यूब का फार्मूला अप्लाई करने के लिए पावर को 3 के टेबल में कन्वर्ट करना होता है. अब 6 है, 3 2s are 6, 6 है, 3 2s are 6. अगर 9 होता तो हम लिखते 3 3s are 9. तो लिहाजा x2 होल क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर होल क्यूब, इसके ऊपर फिर फार्मूला नंबर 5, वो आपके सामने मैंने सारे फार्मूले लिख दिए हैं, तो आप इनसे गाइडलाइन हासिल कर सकते हो. किसी भी क्वेश्चन के लिए ये आपके सामने ही लिखे रहेंगे. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4. Question number 6 part 4, that is x square minus 1 divided by x square plus 2x plus 1 dot I mean multiplied by x plus 5 divided by 1 minus x
Now dear students, in the numerator the expression is x square minus 1. It can be written as x square minus 1 square, यानी a square minus b square वाली फॉर्म में है. डिफरेंस ऑफ स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे. और लुक एट द डिनोमिनेटर, इट इज अ quadratic expression, it is a polynomial, quadratic polynomial, and moreover it is a perfect square. तो बच्चों आज मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी पॉलिनोमियल को अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास एक टेस्ट है कि वेदर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. तो आप जरा गौर से देखें ताकि आपको पता चल जाए कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जब ये चेक करना हो कि वेदर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, तो वेरी सिंपल. क्या फार्मूला है, रफ वर्किंग में लिख रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो. आपने 2 अपने पास से लिख लेना है, मल्टीप्लाइड बाय सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट डालिए. गौर से देखें whether it is a perfect square or not. तो क्या फॉर्मूला है, 2 लिखना है अपने पास से, स्क्वायर रूट. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, एक्स स्क्वायर, राइट हियर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द लास्ट टर्म, दैट इज 1, राइट हियर 1. यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म उस वक्त आपने लेनी है जब ये एक्सप्रेशन या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो या असेंडिंग ऑर्डर में हो. और अगर एट रैंडम मिक्स्ड ऑर्डर में है तो पहले आपने उसे डिसेंड करना है या उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है. तो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज एक्स स्क्वायर, दिस इज द लास्ट टर्म, दैट इज 1. सो इस प्रोडक्ट को आपने अंडर द रेडिकल साइन पुट करना है, यानी स्क्वायर रूट में. फिर उसके बाद 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इंटू 1, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर. नाउ डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट square root is always cancelled with the square, so we have left behind with x, so the product will become 2x. अब आपने देखना है कि ये 2x क्या सेंटर वाली टर्म को टैली कर रहा है. यस, इसका मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव होना वो एक अलग इशू है, लेकिन ये आंसर जो आपका प्रोडक्ट है ये सेंटर वाली टर्म को टैली कर गया 100%. इसका मतलब है ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इट इज प्योरली अ परफेक्ट स्क्वायर. लेकिन किसका स्क्वायर बनेगा वो अभी हम प्रोसेस में लाते हैं. इसको देखें आप, वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ फर्स्ट टर्म x का स्क्वायर, लास्ट 1 का स्क्वायर. नाउ लेट्स कम इन द सेंटर. 2 फॉर्मूले का हमेशा, इंटू फर्स्ट टर्म x इंटू सेकेंड टर्म 1. ये आपका फॉर्मेट बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. यानी आपने इसे a प्लस b के होल स्क्वायर की एक्सपेंडेड जो फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर दिया, और मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5 एज इट इज ओवर 1 माइनस एक्स b एज इट इज, नो चेंज. नाउ दिस विल बी रिटन एज x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1. डिफरेंस ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और यहां भी आप इसको स्क्वायर फॉर्मेट में ले हैं. सो एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स. नाउ डियर स्टूडेंट्स, पहले भी मैंने आपसे आई हैव टोल्ड यू टू पीपल सो मेनी टाइम्स कि होल स्क्वायर का मतलब है उस फैक्टर को आपने 2 दफा लिख देना है विदाउट एनी चेंज ऑफ साइन. यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब है x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1, x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x. नाउ गो फॉर कैंसलेशन वेयर इट इज पॉसिबल. सो x प्लस 1 विल बी कैंसल्ड, एंड आफ्टर दिस the next step will be now dear students, we are left behind with x minus 1, x plus 1
मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5। अब आप देखें जरा गौर से, यहां मैं माइनस कॉमन करूंगा, आप यहां से कॉमन कर लें या यहां से कॉमन कर लें ताकि ये दोनों फैक्टर भी एक हो जाएं और इनकी कैंसलेशन हो जाए। तो यहां से मैं माइनस कॉमन करूंगा तो ये बन जाएगा माइनस बाहर, तो x जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव पहले लिख लेंगे और 1 पॉजिटिव था तो इट विल बिकम नेगेटिव, इसको बाद में लगा देंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों फैक्टर भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो आंसरिंग स्टेप आएगा वो आ जाएगा x प्लस 5 डिवाइडेड बाय ये माइनस इंटू एक्स प्लस 1। इस माइनस को हम सेंटर में भी लगा सकते हैं, इस माइनस को हम न्यूमिनेटर के साथ भी लिख सकते हैं और इस माइनस को हम डिनोमिनेटर के साथ भी लिख सकते हैं। इससे आंसर के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज द लास्ट स्टेप, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट खत्म हो गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 5, दैट इज द लास्ट पार्ट। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी और इन क्वेश्चन के साथ साथ आपने इनको खुद भी एक दफा करना होता है एज योर होम असाइनमेंट। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई टाइम्स एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओवर y times x plus y multiplied by divided by x square minus x upon xy minus 2y. Now take common x as a common factor, x plus y divided by y times x plus y multiplied by, take x as a common factor. You have to be much careful about this sign of multiplication. Right here dot, dot means also multiplication. Sometimes the symbol of multiplication written as a cross, it resembles with the word x. So students are much confused. So it is better for you people to write the symbol of multiplication as a dot. So x common कर लिया, x plus y divided by y times x plus y as it is, no change, multiplied by xy minus 2y divided by x square minus x। पहले हम सारे फैक्टर्स कंप्लीट करेंगे फिर उसके बाद कैंसलेशन होगी। सो x टाइम्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय y टाइम्स x प्लस वाई डॉट मल्टीप्लीकेट x इंटू एक्स प्लस वाई ओवर y टाइम्स y x प्लस वाई। यहां देखें आप x कॉमन कर सकते हैं या y, यानी यहां आप y कॉमन कर सकते हो। So after taking y as a common factor, there will be x minus 2. Similarly here, we can take x as a common factor, तो हमारे पास x minus 1 बचेगा। अब आपने इनकी कैंसलेशन की तरफ आना है, तो देखें this x will be cancelled with this x and one more cancellation, this y will be cancelled with this y. This x plus y will be cancelled with this x plus y. This x plus y will be cancelled with this x plus y. और हमारे पास अब आप देखें क्या बच गया है, गौर से देखें। So we have left behind only x times x minus 2 divided by y times x minus 1. I think this is the answer for this part.